Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Global Learning. Today we will start the first chapter of History of Hypnosis. हम बाकायदा हिप्नोसिस की सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और आज इसका फर्स्ट लेसन हम देखेंगे, पहला लेक्चर. So let's start without further delay. 5,000 years ago, the history of hypnosis is an as old as the history of sleep. The use of the hypnotic technique has been seen the different cultures for healing by different methods. The first information has been recorded 5,000 years ago by the Old Kingdom of Egypt. In the city of Saqqara, there was a temple in the 3rd century that was a central healing center for the people. 5,000 साल पहले से हमें तारीख मिलती है हिप्नोथेरेपी की, जो कि किंगडम ऑफ इजिप्ट से शुरू होती है और उनकी सिटी सकारा में एक जो है टेम्पल था जहाँ पर लोग आते थे अपनी हीलिंग के लिए. इन टेम्पल्स को स्लीप टेम्पल कहा जाता था. नाउ व्हाट वाज temple sleep? Among all of the practices, temple sleep was an important one. The people having illness were used to visit the temple for curing themselves of gods, as important rituals like healing from herbs and long recitation of the prayers. The individual has to stay in a sleep chamber for sleeping and wait for a dream revealing a cure. ऐसा होता था कि टेम्पल स्लीप में लोग आते थे और वहाँ पर जो है वो सोते थे और इंतज़ार करते थे कि उनको एक हीलिंग ड्रीम आए और उस ड्रीम को फॉलो करते हुए वो क्योर हों. तो उनका ये मानना था कि ये जो ड्रीम है ये हीलिंग ड्रीम है और इस ड्रीम को देखने के बाद जो है हम सेहतमंद महसूस करेंगे. Now, sleep temples. The above practice was eventually spread to Greece, where the special practice of making new sleep temples was started. These temples were dedicated to the Aesculapius god of medicine, and its symbol was a surrounded snake. The sick individuals were staying in the chamber filled with snakes and stayed there until the dream of cure has been identified by the god. तो स्लीप टेम्पल्स में क्या होता था कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये ग्रीस तक जो है प्रैक्टिस फैली तो वहाँ पर एस्कोलिपियस को वो जो है गॉड ऑफ मेडिसन मानते थे, जो कि एक सांप का देवता होता था. वहाँ पर बहुत सारे जो सांप हैं वो मौजूद होते थे एक चैम्बर में और उस चैम्बर में जो है लोगों को सुलाया जाता था इस इंतज़ार के लिए कि उनको गॉड की तरफ से एक क्योरिंग ड्रीम आएगा और उस ड्रीम को देखने के बाद वो ठीक हो जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है ओरेकल्स. The ancient practice of oracle has also been found use of hypnotic state. Team of individuals employed to divine the future, just like sleep temples in Egypt and Greece. The expectation and the overload of the message were the main ingredients of both the oracles and individuals. The accomplishment was through the preparatory processes, including the drinking of mixture made by herbs and being led by priests by filled chambers with candles and painted images. The reason for making this environment was to increase the suggestibility of the subject to accept the given suggestion and overload message unit. The most famous oracle was the oracle at Delphi in central Greece, which was used over 1,000 years. अच्छा, कुछ ओरेकल्स बनाए जाते थे इसी तरह के जो हैं कुछ देवियाँ मौजूद होती थी उन जो है मंदिर वगैरह में और वहाँ का इन्वायरमेंट इस तरह बनाया जाता था कि जो सजेशंस हैं वो लोग एक्सेप्ट करें. सजेशन से मुराद वो तरीक़ाकार है जिसके थ्रू हम हिप्नोटाइज होते हैं या हमारा सबकॉन्शियस
कंट्रोल होता है। तो इन जो देवियाँ थीं इनको ओरेकल्स का नाम दिया जाता था और ये माना जाता था कि ये नुमाइंदे हैं गॉड की तरफ से और ये जो है वो मिडल वुमन का काम करती हैं कम्युनिकेशन के लिए गॉड और बंदे के लिए। तो उनके जो अहकामात हैं वो उनको ट्रू माना जाता था और उसके ऊपर अमल किया जाता था। Next, the god Apollo, the Sibyl, was seated on a crack of the earth to work as a medium of communication between the god Apollo and the individuals. Hearing the questions of the people was the job of the Sibyl and receive the answers from the god Apollo for the solution. There were high expectations of the individuals as well as Sibyl for the highest reputation of oracles। इन ओरेकल्स में जो है वो जो देवी मौजूद होती थी सिबाइल उसको नुमाइंदा समझा जाता था गॉड अपोलो की तरफ से और उसका ये मानना था कि वो सुनती है गॉड अपोलो से और फिर लोगों को क्योर का बताती है और लोग इस पे बहुत ज़्यादा यकीन करते थे बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ सजेस्टेबिलिटी। उनको ये लगता था कि ये जो सिबाइल है ये गॉड से बराह रास्त मुखातिब होती है और वो इसको सॉल्यूशन बताते हैं किसी भी मसले का। अच्छा, दैट वाज़ नॉट एन ऑर्डिनरी प्रैक्टिस। उस वक़्त इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, उसने भी ओरेकल से जो है वो परस्यू किया था। द ग्रेट अलेक्जेंडर कंसल्टेड एन ओरेकल इन इजिप्ट बिफोर द कॉन्क्वेस्ट द पर्शिया इन द 4th century BCE। Oracle had not in favor, so Alexander cancelled or changed his campaign। कहते हैं कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है उसने पर्शिया पर हमले से पहले 4th सदी में ओरेकल से जो है मशवरा किया था, इन मंदिरों से मशवरा किया और वो उनके फेवर में नहीं थे। तो अलेक्जेंडर ने अपना जो हमला है वो मुलतवी कर दिया या उसको डिले कर दिया। सो दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दीज ओरेकल्स। सो फॉर टुडे दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन। मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो बुनियादी चीज़ें सीखी वो आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी को आगे लेकर जाएंगे और लेसन नंबर 2 को हम स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि उसके बाद हिस्ट्री में क्या हुआ और हिप्नोथेरेपी किस तरह इंटरेस्टिंग तरीके से डेवलप हुई। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।